Hello dear students, today we are going to talk about class 10th English medium supplementary unit number 6 part 3. Up to now we have discussed about part 1 and part 2, in which we have discussed that Richard Ebright was a kind of boy who would like to learn the things from the bottom and would like to find what are the reasons behind to behave in such a manner. Since he was in the kindergarten, he was having a keen interest in the field of science. At the very age or at the early age, he and his classroom mate or roommate both published a journal. That is what we have looked, and in all sorts of all kind of things that he was just try to learn and in the form of keen interest. His mother would like to help her. Whenever Ebright would ask for something, for as microscope, telescope, other necessary materials, she provided everything, cameras, and on the top of it, both the mother and the son sat together and discussed about it every day at evening. When he was at 2 years, he was in 2nd grade. When he was in school, her mother called certain friends and they used to have a discussion about these various kind of subjects from where they can get something new to know. Apart from this, we have also discussed about that the doctor Urquhart a person who offered a study of monarch butterfly, a kind of butterfly, and invited certain or some of the tags on it. Ebright initially started working with the determination, firm determination. He thought that it is very difficult to catch one by one butterflies and to make a study and to have a tag and to send that doctor. What he done? He anyhow fed certain butterfly, female butterfly, and tried to raise that butterfly into the basement of his house, where we can see in that unit, in the second part, that was written that throughout the journey from the caterpillar pupa to the adult butterfly, at that time, that is what we have discussed up to now, and now let's move from that. Of the University of Toronto, Canada, Ebright's mother wrote Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarchs. Monarch जो बटरफ्लाई है काइंड की, उसके विंग्स उसने टैग करना शुरू कर दिया. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send a tag to Dr. Urquhart. The butterfly collecting season around the reading lasts 6 weeks in late summer. This is the proper season where you can just have a proper study about this monarch butterfly, because this is the season
where they can grow more. If you are going to chase them one by one, you want very many. अगर आप उसको एक के बाद एक पकड़ने के लिए जाओगे, फिर स्टडी करने के लिए जाओगे, it will take too much time. So the next step for the Ebrahim ने क्या सोचा? He thought that was to raise a flock of butterflies and he would catch a female monarch. उसने बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू किया, उसमें से फीमेल को अलग किया. Take her eggs and raise them in his basement of the house. उस घर के बेसमेंट के हाउस के अंदर उस फीमेल बटरफ्लाई को लेके गया. Through their life cycle, वहां पे उसने स्टडी किया. बटरफ्लाई फीमेल को लेके गया और वहां पे उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी किया. लाइफ साइकिल क्या थी? फ्रॉम एग टू कैटरपिलर. पहले एग आता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनता है. दिस इज द स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ बटरफ्लाई. हाउ द बटरफ्लाई फॉर्म. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. फिर उसकी विंग्स को टैग करता और फिर उनको छोड़ देता. फॉर सेवरल इयर्स his basement was the home of thousands of monarch butterfly in a different stages of development. थोड़े सालों के लिए इब्राहिम के घर का बेसमेंट उस मोनार्क बटरफ्लाईज का टेम्पररी हाउस बन गया था और वो हर एक जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होता है बटरफ्लाईज का, उसको वो हर टाइम स्टडी करता रहता था और जब भी एक का काम खत्म हो जाए उसको छोड़ दिया करता था. Eventually, I began to lose interest in the tagging of butterflies. अब इब्राहिम कह रहा है हमें कि धीरे धीरे, eventually का मतलब होता है धीरे धीरे, he began to lose interest in tagging the butterflies. इब्राहिम को इतना मजा नहीं आ रहा था. It's tedious. वो बोरिंग होता जाता था. एक ही किस्म की ग्रेड के अंदर जिसको बोलते हैं आप कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस करना. एंड देयर इज नॉट मच ऑफ फीडबैक एज वेल. जब आप कोई काम करते हो उसमें अच्छा या बुरा कुछ तो फीडबैक बनना चाहिए, मिलना चाहिए. अगर आपको कोई काम कर रहे हो और एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है आपको, गुड, वेरी गुड, नाइस, बैड या नीड टू इंप्रूव, अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो वो काम आपको और भी टीडियस, बोरिंग लगने लगेगा. इब्राहिम ने ये चीज हमें बताई. In all the time I did it, मैंने हमेशा ये किया. He laughed, जोर जोर से हंसा. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. मैंने जो भी बटरफ्लाई टैग की बात की थी, इब्राहिम बोल रहा है. अब उसने बोला, इब्राहिम ने, कि मैंने जो कैप्चर किए थे उसमें से सिर्फ 2 ही वहां पे दिए गए, टैग किए गए और वो मेरे घर से, मैं जहां पे रह रहा हूं वहां से 75 माइल्स से ज्यादा दूर नहीं थे. देन इन द 7th grade, जब वो 7वीं कक्षा में आया, he got a hint of what a real science is. उसने एक हिंट प्राप्त की कि वास्तविक विज्ञान किसे बोलते हैं. उसको मालूम पड़ा जब वो he entered a county science fair. जब वो काउंटी साइंस फेयर के अंदर गया तब उसको मालूम पड़ा कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है. वास्तविक विज्ञान ये नहीं होता कि आप कोई चीज होती है उसकी स्टडी कर दिया आपने, उसमें से कुछ निकाल लिया. इट इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड ईच एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर्स. अब जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके हर एक लम्हे, हर एक सांस, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक जो भी वो एक्शन कर रहा है उस सभी की प्रॉपर डिटेल के बारे में खुद जानना, समझना और फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करना. किसी बुक का वहां पे लेके आप लेके आए, फिर वहां पे पढ़ रहे हो, फिर दोनों को मिक्स करके आपने पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं. ये चीज उसको तब रियलाइज हुई जब वो काउंटी साइंस फेयर के अंदर पहली बार गया और
जैसे ही गया वो अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो गया, खो गया जिसको बोलते हैं। साइंस की दुनिया में खो जाना मतलब उसमें डूब जाना, हर एक चीज को समझना। I hope my dear student this will help you to understand the unit better. Thank you. Okay, good morning friends. We are today going to look about class 10 English medium supplementary unit number 6, the making of scientist. This is the part number 4 that we have or we are going to discuss today about. Now up to now we have discussed the 3 parts in which we have learned about the journey of a bright Richard, how he just started sinking into the field of scientist, right? It was really a sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won some things. यहाँ पे ब्राइट बोल रहा है कि एक दफा जैसे ही ये बटरफ्लाई वाला जो इन्वेंशन वगैरह का केस है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इब्राहिम हैड नथिंग टू डू एक्स्ट्रा व्हाइल द अदर मेंबर्स और अदर फ्रेंड्स ऑफ हिम वर मेकिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। His entry was slides of frog tissue. जब वो उस साइंस फेयर के अंदर एंट्री लेता है तब उसने देखा, क्या देखा, तो फ्रॉग जो था उसकी एक स्लाइड, जिसको काटते बीच में से एक स्लाइड रख के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो वो वहां पे था। Which he solved under microscope, जिसको उसने माइक्रोस्कोप में से देखा। He realized that Venus had tried to do real experiments. उसको मालूम पड़ा कि जो बंदे कुछ करना चाहते हैं, वास्तविक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो बहुत सख्त परिश्रम करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कुछ नुस्खे करने चाहिए, उस पे कुछ ना कुछ नए कोशिशें करनी चाहिए, उसमें से हमें कुछ प्रोडक्शन मिलता है। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ऑलरेडी, उसमें क्या बोला, नीट डिस्प्ले ऑलरेडी, दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट drives Richard Ebright was appearing. अब इब्राइट जो रिचार्ड है उसके दिमाग के अंदर एक रिवॉल्यूशनरी एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जग चुकी थी। वो बोल रहा है, I knew that for the next year fair I would have to do real experiment, he said. उसने अपने आप को कहा कि अगर मुझे कुछ कर दिखाना है तो अगले साल जब ऐसा साइंस फेयर हो तब मेरा खुद का वहां पे एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। दिस इज द डिटर्मिनेशन बाय अ यंग साइंटिस्ट इब्राहिम। आई न्यू द मोस्ट अबाउट द इंसेक्ट, मुझे बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में ज्यादातर चीजें मालूम है। आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल इयर्स, और वो पीछे बीते हुए कई सालों से ये काम कर रहा था। So he wrote Dr. Urquhart, उसने उर्क्वाट को लिखा, क्या लिखा, for an idea, and back came a stack of suggestions, एक बड़ा सा स्टैक भर के suggestions डॉक्टर ने उसको दिए for the experiment. Those kept Ibrahim busy all through his high school. जब इब्राहिम हाई स्कूल के अंदर था, दूसरे ईयर साइंस फेयर में पार्ट लेना चाहता था और एक्सपेरिमेंट्स उसका होना चाहिए ऐसा उसका डिटर्मिनेशन था, तो उसने डॉक्टर उर्क्वाट को बोला। उर्क्वाट ने उसको बहुत सारे सजेशंस दिए और उसी सजेशंस पे जब वो काम करता गया तो वो पूरी हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रहा। एंड to prize project in county and international science fair as well, और उसने रूरल जो लोकल साइंस फेयर थे उसमें तो प्राइज जीता, लेकिन इंटरनेशनल प्राइज भी उसने इसी के दौरान जीता। फॉर हिज 8 ईयर और 8 ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वीं कक्षा का स्टूडेंट था और उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, इब्राहिम ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वायरल डिसीजेस। जब वो 8वीं कक्षा में था तब उसका एक्सपेरिमेंट्स क्या था, कॉज ऑफ वायरल डिसीज का ढूंढना। किसमें ये चीज हो रही थी, मोनार्क नाम के बटरफ्लाई के अंदर, जो जब वो कैटरपिलर का स्टेज होता है तब उसमें वायरल डिसीजेस होते थे, तो उसने इसका प्रोजेक्ट
सिलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इब्राइट थॉट दैट डिसीज माइट कैरिड बाय अ बीटल। उसको पहले लगा कि ये जो डिसीज है वो एक बीटल, छोटा सा इंसेक्ट आता उसके जरिए ये फैलता है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उसने बहुत सारी बीटल्स इकट्ठा की और वही मोनार्क के कैटरपिलर जो थे उसको भी वहां एक साथ रखा। बट उसको क्या मालूम पड़ा, आई डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम इट। वहां पे उसको कोई वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला। उसने कहा बट आई went ahead and showed that I had tried the experiment। लेकिन फिर भी रिजल्ट न मिलने के बाद भी वो आगे बढ़ा और उसने वहां पे सबमिट किया कि मैंने कोशिश की, I have done experiment but I couldn't succeed in it this time, and this is how he expressed his feeling। experiment this time I won। अब लास्ट जो टाइम था उस टाइम पे उसने वो चीज जीत ली। तो मान लो डियर स्टूडेंट ये सारी चीजें आपके दिमाग में अब अच्छे से जा रही होगी, स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो रही होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट हार्ड वर्ड्स एज वेल, राइट। जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगे वो लिखे और इसको एक बार और रीड जरूर कर लीजिएगा टू रिवाइज पर्पस। थैंक यू।